Exercise 1.4. Question number 7. If A equal to X is such that X is a natural number, B equal to X is such that X is an even natural number. Next हो गया C equal to X is such that X is an odd natural number. ठीक है. And last one is D. D equal to X is such that X is a prime number. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने निकालनी है. तो फर्स्ट वी फाइंड A. First we find A. So A equal to X such that X is a natural number. Means 1, 2, 3, 4, 5, dot, dot, dot. ठीक है. Next, B equal to X such that X is an even natural number. Means 2, 4, 6, 8, dot, dot, dot. C equal to X such that X is an odd natural number. Means 1, 3, 5, 7, 9, dot, dot, dot. And D equal to X such that X is a prime number. ठीक है. प्राइम नंबर मतलब 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको हमने एक बार पहले भी देखा है. सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so. ठीक है. Now we have to find first number A intersection B. So X is the natural number, A intersection B, and X is even natural number. तो natural number और even natural number दोनों में कॉमन क्या आ गया? Even natural number 2, 4, 6, 8. So this equal to B. Second हो गया A intersection C. A intersection C means natural number and odd natural number. Common क्या हो जाएगा? Odd natural number 1, 3, 5, 7, 9. So this will be C. Next हो गया A intersection D. पूरा नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर. तो मतलब क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, dot, 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 and this equal to B. ठीक है. Next, fourth number E intersection C. E और C में क्या कॉमन होगा बताओ? P और C में क्या कॉमन होगा बताओ? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो. What is the common between B and C? B and C में क्या क्या कॉमन है? Even natural number and odd natural number. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. So this is null set or empty set, or this is 5. Next हो गया B intersection D. B क्या है? Even natural number और प्राइम नंबर. दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन आ जाएगा 2.
ठीक है। नेक्स्ट 6th नंबर, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में कॉमन क्या है? ऑड नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर, उसमें कॉमन क्या आ जाएगा? बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 पूरा ही आ रहा है ना ये तो सिर्फ इसमें 2 को हटा देंगे। ठीक है, तो मतलब 3 5 7 11 13 12, ये इसके कॉमन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8, which of the following pair, which of the following pair of sets are disjoint? Which of the following pair of sets are disjoint? तो वहीं साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, disjoint sets, two sets A and B are disjoint if A intersection B equal to 4. ठीक है, मतलब अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, then they are said to be disjoint. ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, तुमको बताना है कि इनमें क्या क्या कॉमन, कौन कौन से जो है वो डिसजॉइंट है। फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 and x such that x is a natural number and 4 less than x less than 6. अब बताओ क्या ये डिसजॉइंट है? क्या ये डिसजॉइंट है? तो सर नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, अगर इसके मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 5 6। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो गया? 4 is not equal to 5. So a and b are not disjoint. ठीक है, वो दोनों जो हो गए डिसजॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले में। एक सेट दिया है, तो मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू, एंड सेकंड सेट है बी, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ। So tell me whether these are disjoint or not. यस सर, This is disjoint. अरे भाई ई कॉमन है दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया? ई नॉट इक्वल टू 5, so A and B are not disjoint. ठीक है, A and B disjoint नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर में, तुम लोग अच्छे से चेक नहीं कर रहे हो लग रहा है। थर्ड नंबर
a equal to x such that x is an even integer and b equal to x such that x is an odd integer. बोलो क्या बनेगा? डिजॉइंट होगा या नहीं होगा? होएगा। होएगा. So a intersection b equal to 5. Even integer or odd integer, there is no any common between them. It implies that a and b are disjoint. ठीक है? a and b are disjoint. ठीक है? So note it. चलो. So question number 9. क्वेश्चन नंबर 9. अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हमको निकालनी है. ठीक है? इफ a equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. b equal to 4, 8, 12, 16, 20. c equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. And d equal to 5, 10, 15, and 20. ठीक है? Then find first number a minus b. देखो माइनस करने का मतलब क्या था? a माइनस b को मैंने कल की क्लास में डिफाइन किया था. a minus b is the set which contain elements of a other than b. Means we subtract from elements of a common between a and b. ठीक है? a में से जैसे a माइनस b किया तो a में से a और b के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम माइनस करेंगे. ठीक है? तो मुझे बताओ a माइनस b क्या बनेगा? क्या क्या माइनस हो जाएगा a माइनस b में? पहले तो कॉमन देख लो क्या क्या है. तो एक तो कॉमन दिख रहा है 12. उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है ना. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 4, 8, 12, 16, 20. हाँ, और कुछ भी कॉमन नहीं है. सो a माइनस b इक्वल टू 3, 6, 9, 15, 18 and 21. ठीक है? 3, 6, 9, 15, 18, 21. ठीक है? बात समझ में आ रही है? a माइनस b को मैंने कल भी बताया था. अगर हमारे पास a है 1, 2, 3, 4. b की वैल्यू अगर हमारे पास है 3, 4, 5, 6. तो a माइनस b का मतलब a में से b के कॉमन एलिमेंट को माइनस करेंगे. सो इट विल बी 1, 2. एंड b माइनस a का मतलब हो गया b में से a के एलिमेंट को माइनस करेंगे मतलब 5, 6. ये बन गया. ठीक है? तो a minus b will be 3, 6, 9, 15, 18 and 21. नेक्स्ट हमारे पास है a minus c. बोलो a minus c क्या बनेगा? बताओ मुझे a minus c क्या बनेगा? अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो. What is 6, 12. हाँ, a minus c. 6,
12, ओके, क्या कर रहे हो? ए माइनस सर ये कॉमन है। 6 और 12 ये माइनस हो गया, और क्या माइनस होगा? और कुछ नहीं। 6 और 12 माइनस होगा, बाकी सबको लिखना है अपने को, ठीक है। तो ए माइनस बी के एलिमेंट्स बताने हैं, तो बाकी हो गया 3, 9, 15, 18 एंड 21, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया थर्ड नंबर, ए माइनस डी। ए माइनस डी में क्या क्या कुछ माइनस होगा नहीं होगा? ए और डी में तो लग रहा है कुछ कॉमन है ही नहीं ना। 5, हाँ, एक 15 जाएगा, तो एक माइनस होगा 15, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12, 18, 20 हो गया। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे फिर पूरा? सेम ही तो है, सब में सिर्फ माइनस माइनस ही करना है, ठीक है। हाँ, सेम है ना, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सारे तो सेम ही है उसके बाद। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ, रोहित क्या कुछ डाउट है क्या? हाँ X सर, equal- क्वेश्चन तो समझाना। कौन सा बोलो, समझा दो। फिर से समझा दो। यही वाला। अच्छा, यस सर। चलो देखो इधर, यहाँ पे हमारे पास माइनस, माइनस को मैंने कैसे बताया था? जैसे a माइनस बी अगर हमारे पास है, तो a माइनस बी का मतलब a में से b के एलिमेंट को माइनस करना, मतलब a में से b के जो कॉमन पोर्शन है उसको हम माइनस करें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी मतलब a में से b का जो जो एलिमेंट कॉमन है उसको माइनस करेंगे, तो कॉमन क्या दिख रहा है? देखो 3, 6, 9, 12, 12 एक कॉमन है, सर 12 कॉमन। और तो बाकी सब सेम है। तो उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है वो लिख लो, मतलब 3, 6, 9, 15, 18, 20। क्या पहला 3, ओके। 6, 9, 15, 18, हाँ 20। अगले इसमें आ जाओ। अब a माइनस सी है, तो a माइनस सी में क्या करेंगे? अब c वाला और a और c का पहले कॉमन एलिमेंट है। कॉमन इसमें क्या क्या है? इसमें कॉमन है हमारे पास 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, और तो कुछ नहीं है ना, सर। बस 6 कॉमन है। तो क्या बच गया? मैं इसको हटा दिया मैंने। अब देखो क्या बचा, 3, 9, अच्छा एक 12 भी कॉमन, एक हाँ 12 सर 12 भी है। क्या बचा, 3, 9, 15, 18, 21। 3, 9, 15, 18, 21 हो गया, ठीक है। वैसे ही a माइनस डी, यस सर। ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है ना? आ गया समझ में। हाँ, आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू a b c d, y इक्वल टू f f b f b d g, ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट नंबर x माइनस वाई। x माइनस वाई में क्या होगा? कॉमन हो गया p, क्या बन गया? a सर डी भी। a c d, अच्छा d भी कॉमन है, तो हाँ a सर। एंड c में d नहीं है, ठीक है। तो a कॉमा c, उसी का सेकेंड y माइनस x, तो y एफ माइनस एंड एक्स जी। में
F and G। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान है, बस जो कॉमन दिख रहा है ना उसको माइनस करके हटा, माइनस कर रहे हैं मतलब कॉमन वाले को माइनस करके हटा दो, जो बच गया वही हो गया हमारा L। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। If R is the set of real number, Q is the set of rational number, ठीक है, then R minus Q equal, ये हमको बताना। बोलो क्या बन जाएगा? रियल नंबर में से रैशनल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर, बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, सो R minus Q is the set of irrational number। ठीक है, R minus Q is the set of irrational number। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फिर ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, state whether each of the following statement is true or false। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर, मैं ए और बी करके लिख रहा हूं। ए दिया है 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू दिया है 3 6 आर disjoint। Tell me whether this is true or false। false, False, yes, because 3 is common to the both। A intersection B equal to क्या हो गया? 3। So it implies that A and B are not disjoint। ठीक है, A and B are not disjoint set। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर। A equal to A E I O U and B equal to A B C D are disjoint set। बोलो, is it true or false? sir, false, Why false? sir, A common है, Because A is the common to both A and B। ठीक है, so its answer will be false since A intersection B equal to A। हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट वर्ड, थर्ड नंबर में आते हैं। A equal to 2 6 10 14 equal to 3 7 11 15 are disjoint। बोलो
ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, True. ट्रू, दिस इज ट्रू। True, sir. हाँ, since A intersection B equal to हो गया 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, so this is, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर A equal to 2, 6, 10, B equal to 3, 7, 11 are disjoint sets, ठीक है, are disjoint set. Tell me whether this is true or false. Sir, true. 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 Yes. This is true since A intersection B equal to, ठीक है, बहुत आसान था, वैसा ही था हमारा डिसजॉइंट सेट के पैटर्न के हिसाब से। डिसजॉइंट सेट मींस देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन जस्ट टू सेट्स, ठीक है। सो इफ A intersection B equal to 5, then the sets are known as disjoint. जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देयर इज वन मोर डेफिनेशन, दैट इज complement of a set, ठीक है, complement of a set. Let A be the given set and 2 be the universal, U be the universal set. Then complement of set A is the set which contain elements present in universal set, present in universal set other than A, ठीक है। मतलब क्या हुआ, therefore complement of set A, it is denoted by A dash and this equal to U minus A. मतलब यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो जो हमारा बचेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, U इक्वल टू मैंने लिखा 1, 2, 3 अप टू 10 तक मैं सारे नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। A मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो A डैश का मतलब होता है U माइनस A, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स बच गए मतलब 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा बन गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। मतलब पूरे यूनिवर्सल, जैसे हमने A माइनस बी निकाला डिफरेंस ऑफ सेट, बस ये भी डिफरेंस ही है। हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट हमारा गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो जो हमारा सेट बनेगा दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट मींस व्हाट, दिस इज द सेट व्हिच इज द सुपर सेट और पावर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, ठीक है। मतलब जितने भी गिवन सेट्स होंगे वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को मैंने पहले भी डिफाइन किया, ठीक है, अपने नोट्स को रेफर करोगे तो वहां पर सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है।